جی بھائی بولیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی. اچھا جی. آج بھی یہی بات ہم کرنا چاہتے ہیں. ہاں کریں، بات کریں، میں سن رہا ہوں. جی سن رہے ہو؟ آواز ہاں کلیئر آ بولیے. رہی ہے؟ جی بات کیجیے، بولیے. جی جناب، مجھے بتاؤ کہ ہم نے اس سے بھی پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کو ہم نے ثابت کر. آپ قرآن کو مانتے ہو؟ پہلے سے ہاں یا نہیں میں جواب دو. ہاں قرآن تو میرے ہاتھ میں رکھا ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا ہے. نہیں جی. بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہو یا نہیں؟ نہیں، ماننا کیا ہوتا ہے؟ مطلب اللہ کی طرف سے کتاب بھیجی گئی ہے یا نہیں؟ تو اس کا کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے نا، میں کیسے مان لوں؟ چلو ٹھیک ہے، سمجھو آپ مانتے نہیں ہو، ہاں یا نہیں، بس ان شارٹ نہیں میرے جواب. بھائی، نہیں میرے بھائی، جس چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے میں اس کو کیسے مان لوں؟ چلو نہیں مانتے ہو. اور اللہ کو مانتے ہو جو قرآن نے کہا ہے اللہ؟ تو پتہ نہیں اللہ کہاں رہتا ہے. چلو ٹھیک، اللہ کو بھی نہیں مانتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ تو بھی ہم تو پتہ نہیں، جس کو میں دیکھا نہیں، میں چلو دیکھا نہیں، میں دیکھا نہیں، جانچا نہیں، پرکھا نہیں، میں کیسے مان لوں کسی ایسی شخصیت کو جو صرف اچھا سنی ٹھیک سنائی ہے؟ ہے. اچھا بالکل بڑھیا، بہت بڑھیا بات، بہت بڑھیا بات. اب تو ہمارے بھائیوں، ہم آپ کی عزت بہت کرتے ہیں. کم سے کم ہمارے سامنے اس کے 50 بندے بیٹھے ہیں. 50 سے 60 اچھا بندے میں رہتا ہوں. کشمیر کا رہنے والا ہوں میں، انڈیا جی. کشمیر کا. اچھا. جی، جب آپ کتاب کو نہیں مانتے ہو تو اسی کتاب سے آپ حوالہ کیوں پھر مانگتے ہو جناب؟ تو پھر کس نہیں بھائی، جب میں آپ کتاب کون کو سی نہیں کتاب مانتے سے ہو. حوالہ دوں میرے نہیں بھائی؟ جی، کون سی جب آپ کتاب سے حوالہ مانا؟ دیکھو جب آپ قرآن کریم جو آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی میں کتاب ہے، ہم آسمانی تو کیسے کہہ لوں بھائی؟ آسمانی میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، کتابیں زمین پر لکھی جاتی، لکھنے والے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھو کہہ رہے ہیں کیوں کہ آسمانی آسمان سے کتاب ہے، آئی. دیکھو آسمانی آسمان سے کتاب نہیں. نہیں، آپ دیکھو کو ثابت کرنا پڑے گا نا یہ آسمان سے کتاب آئی. دیکھو آسمان سے ہم کو کتابیں بھی ثابت کرنا آتی ہیں. پڑے. ایک منٹ ہمارے بھائی صاحب، جی. ہم کو ثابت کرنا. جب آپ قرآن کو مانتے نہیں ہو بھائی، ہم کیا ثابت کریں؟ بھائی ماننا کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہم جاننا چاہتے ہیں. یہ تو ویسی مثال ہے کہ ہوا میں تیر پھینکنا. تو ہوا میں وہ بھی بنا تو تیر نشانے ہوا کے. میں ہی پھینکی جاتی نا پھر کس میرے کام کی وہ بھائی. جو ہوا میں جو نشانے پہ تیر نہ جو لگی ہے تیر ہوا، وہ. تو اگر دیکھو جو جس ہے طرح آپ ہم کے نے پاس جو ہے آپ کا تیر نشانے پہ لگتا ہے تو بتائیے کب جب لگا، لگے گا کون سے نہیں. نشانے پہ لگا؟ دیکھو آپ قرآن کو مانتے نہیں ہو، نبی کو مانتے نہیں ارے ہو، کیسے اسلام مانوں گا؟ کو ظاہر مانتے بات نہیں ہے، ہو. کچھ بھی میں دیکھیں کوئی کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے، میں کیسے مان لوں؟ ثبوت جب آپ مانو گے نہیں تو ثبوت کیا دیں گے؟ جب آپ ثبوت اس تو کتاب کو آپ آپ ثبوت مانتے دیں گے نہیں ہو. تو ہم مانیں گے نا. ثبوت دیجئے پھر، آپ جس کو مانتے ہیں اس کا ثبوت دیجئے. دیکھو ہم نے بتایا تھا آپ کو، وہ قرآن کریم میں ہے، وہ ماہم اینا ما کنتم جی. اینا ما تولوا فثم وجہ اللہ. کہاں ہے؟ میں جو قرآن ہے میں ہے. منہ ادھر پھینکتا ہوں تو میرے بھائی سنیے ذرا، میں ادھر منہ پھیرتا ہوں، ادھر منہ پھیرتا ہوں، اللہ کہیں بھی جو ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا. چلو 2 منٹ کے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہم کو بھی چلو آپ کا ہی مانے، ہم کو بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. چلو آپ ہی بتاؤ اچھا، پھر کائنات کریٹر کون ہے؟ کوئی تو کون ہے کریٹر کریٹر بتائیں آپ بتاؤ میرے نا. بھائی؟ کریٹر کائنات کو کون ہے؟ کس نے کون ہے بنایا؟ چلو کائنات میرے کو کس نے بھائی؟ بنایا بتاؤ. ہم تو کہتے ہیں کہ اب میں اللہ نے بنایا، رحمان نے بنایا، رحیم نے بنایا، مالک نے بنایا. آپ تو بتاؤ کس نے بنایا؟ پھر نہیں بتاؤ نا بھائی، کس نے اب میں بنایا. ارے یار رکو تو صحیح یار، ارے یار بھاگتے جاتے بھائی، اس طرح سے بہت جلدی اچھی. جلدی میں جو ہے. ارے یار رکو ذرا، ایک سامنے والے چلو کو ذرا بڑھیا، سانس تو لینے دو، آپ بھی سانس لے لو، اتنا کیوں بھاگ رہے ہو ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک. ابھی کائنات کو کس نے بنایا؟ اب میں بولوں گا تو بولیں گے کہ بولتا ہے. اچھا بولوں بولو. کائنات کو کس نے بنایا؟ بولو نا، بولو. آپ کو بھی پھر اچھا آپ ثبوت دینا مان پڑے جاؤ گا گے؟ جس طرح. نہیں، آپ کو بھی پھر پرمان دینا پڑے گا، ثبوت دینا پڑے گا. تو ایسی میرے تو ہم بھائی نہیں مانیں گے وہی جس تو طرح آپ نہیں مانتے. مسئلہ ثبوت ہی کا تو نہیں ہے نا. جس طرح مسئلہ ہمارے ثبوت ہی کا. فضل الرحمان بھائی نے بتایا تل کر رسول آپ ایسا فضل، بول اس رہے میں ہیں بھی جیسے دکھایا آپ نے تھا. ثبوت دے دیا. ارے آپ یار ایسا یہ جو بول ہے، رہے ہیں جیسے آپ نے ثبوت دے دیا، اب سچ والا جی کو ثبوت دینا ہے. پہلے آپ تو ثبوت نہیں دیجئے نا بھائی. دیکھو عبد الحمید صاحب، دیکھو ہم نے تو ثبوت اس کے کئی انگنت ثبوت، جس کو میں مطلب کوئی ایک گنتی نہیں دیجئے ہے. نا، ابھی ایک دے دیجئے. ابھی کیا حرج ہے؟ جی ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی ثبوت دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو. آپ دیجئے نا بھائی، آپ ہاں دے دیجئے نا ایک ثبوت. ابھی دے نہیں دیجئے مانو ابھی گے پھر. اس ابھی وقت. اسٹریم میں آپ نے ایک بھی ثبوت نہیں دیا ہے. آپ قرآن کے آپ حوالے سے شکایتیں کر ایک رہے دو ہیں بھائی ثبوت دے. دیکھو دیکھو شکایتیں دیکھو کیا آپ کریں؟ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتاتا کہ انسان کو میں نے خلق الانسان علمہ البیان.
तो उसको मैंने बोलना सिखाया। आयत नंबर बोलिए, हाँ, आयत नंबर बोलिए ना, स्क्रीन पे लगाएंगे ना। सूरह अर्रहमान। अच्छा, उसमें क्या है भाई? बताया ना उसने, अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने इंसान को बनाया, उसको बोलना अल्लाह सिखाया। ने बताया, कहाँ लिखा है ऐसा? ऐसा कहाँ लिखा है? वहां तो रहमान है सिर्फ। रहमान कौन है? उसके रहमान किसका नाम है मेरे भाई तो क्या बताया रहमान ने ना, बताया? हम मेरे भाई तो रहमान कहते हैं वहां कि पर जो है गायब है। आपको पता है गायब किसे कहते हैं? वो तो मुझे पता है, गायब भी कहते हैं। अरे रुको यार, जरा रुको, जरा धीरे धीरे, जरा धीरज से बात करो यार। बहुत देखें, आप जो जिस सूरत रहमान की बात कर रहे हैं, उसमें आपका जो रहमान वाला जो खुदा है, जो रहमान है, वो तो गायब है। कैसे गायब है? रहमान, सुनिए जरा, सुनिए। रहमान क्या है? उसके बाद क्या है? रहमान के बाद क्या है? अल्लमल कुरान, अल्लमल कुरान, अल्लमहुल बयान। ये जितने सेगे हैं सारे के सारे गायब के हैं, माजी के हैं। अल्लमा गायब का सेगा है माजी का, खलका गायब का सेगा है माजी का, अल्लामा सिखाया गायब का सेगा है। मेरे भाई, सिखाया ये गायब का सेगा है। आपको पता है गायब किसे कहते हैं? नहीं, मैं ये भी जानता हूँ, इसम भी जानता हूँ, हरफ भी जानता हूँ, सब कुछ मैं फैल भी जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। ग्रामर मैंने बहुत कौन सा सेगा है? अच्छा, आपका ग्रामर बहुत अच्छा है। देखो अल्लामा का मायने है सिखाया, सिखाया। ये कौन सा सेगा कौन सा है? ये सेगा कौन सा है? कौन सा? आप बता ना कौन सा सेगा है। तो वही तो मैं आपसे पूछ, आप जानते बोले ना, आप जानते बोल रहे ना। अल्लामा कौन सा सेगा है बताइए? आपने कहा आप जानते हैं, तो मुझे बताइए अल्लमा कौन सा सेगा है, खलका कौन सा सेगा है, अल्लमहू कौन सा सेगा है? आपको पता है? आपने कहा आप इस्म भी जानते हैं, हर्फ भी जानते हैं, फ़िअल भी जानते हैं। खलका, अल्लमा, अल्लमहू, ये जो है अगर फ़िअल है तो कौन सा सेगा है? आपको पता है? पता? पता है भी या नहीं? आपको, आपने कहा कि जो है आप जानते हैं, आपको पता है। क्या पता है आपको? बोलिए, बोलिए ना भाई, क्या हो गया? अल्लमा, खलका, अल्लमहू कौन सा सेगा है? आपको पता है? पता? क्या हो गया? रुक क्यों गया मेरे भाई? नूरुल इस्लाम जी, क्या हो गया भाई? कौन सा सेगा है? कहाँ है जब से रुके हुए? हेलो, क्या बताए? क्या बताया जी? आवाज आ रही है? अरे आवाज नहीं, आप तो बोलिए आ रही है आवाज। देखो मेरे भाई, आप तो इस मौजू को हम दोबारा कभी डिस्कस, अभी तो अल्लाह को साबित कर रहे हैं। मेरे भाई, आपने तो जो है सूरह रहमान की जो है बात की ना, उसके बाद रहमान आपने कहा, अल्लमा आपने कहा, अल्लमल कुरान आपने कहा, खलकल इंसान आपने कहा, अल्लमल बयान आपने कहा, सब कुछ आपने कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अल्लमा और खलका कौन सा सेगा है? आपको पता है? पता है? देखो आप बता, मुझे पता है, आप क्या बताओगे? तो आप बताइए ना, फिर आप जानने वाले हैं ना। आपने कहा आप जानते हैं, बताइए ना भाई जी। आप कैसे सब, मैं तो इसको साबित कर रहा हूँ कि अल्लामल। अरे मेरे भाई, ये मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अरे मेरे भाई, अल्लमा और अरे यार, मोमिनीन का यही मसला है, नहीं वो उनकी गाड़ी को ब्रेक ही नहीं होता है यार, भागते रहते, कहीं ब्रेक ही नहीं लगता। अरे भाई जरा रुको, जरा ब्रेक लगाओ यार। जी चलो, ब्रेक लगा दिया। मैं कहा 160 स्पीड में चल रहा था तो मैं ब्रेक लगा दूं, मैं तो आहिस्ता चल रहा हूँ। अच्छा, 160 की स्पीड में क्यों जाते हैं आप? जरा धीरे धीरे चलो यार, जरा धीरे चलो, इतना क्यों भागते हैं? हाँ, अल्लमा और खलका ये कौन सा सेगा है बताइए? माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, आप अपना नाम सच वाले से काट के झूठ वाला अपना नाम रखो, क्योंकि आप मानते ही नहीं हो बात को। मैं तो साबित, मैं तो देवान को निशाना कर रहा हूँ। आगे इल्मी बात कर दी आपने, अब कर दी इल्मी बात। जी मैं तो देवान को, जी मैंने सिर्फ इतना पूछा कि अल्लमा, खलका और अल्लमहू कौन सा सेगा है? देखो इनका दावा यह है कि ये सब कुछ जानते हैं। तो मुझे बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये सेगा कौन सा है? सेगा कौन सा है? बोलिए ना मेरे भाई। जी आदाब स्टॉर्म पायलट, कैसे हैं आप? आदाब सबको आदाब।
कैसी है बात आपकी? ये जो साहब हैं जी ये जो सामने चीज पड़ी है कुरान है उसको तो साबित नहीं कर सकते और बोल रहे हैं कि अल्लाह के ऊपर बात करना चाहते हैं। देखो भाई देखो देखो मेरे भाई भाई बात सुनो किराम है। अभी आपने बोला कि आप सच वाले जी आप अपना नाम झूठ वाला रख लो, आप अपना नाम गधा रख लो, इसलिए आप कि अपना नाम सुने आपने बोला झूठ वाला रख, हम बोलते हैं कि आप अपना नाम गधा रखो। वो इसलिए रखो कि बात कुरान के ऊपर हो रही है तो आप कुरान को साबित करो कि ये अल्लाह की किताब है जो सामने पड़ी। आप 10 पॉइंट रखो कि ये अल्लाह की किताब है, हम 10 पॉइंट रखेंगे ये अल्लाह की किताब नहीं है, दुनिया फैसला कर लेगी, सीधी सी बात है। और आज आप जाते अल्लाह के पीछे क्यों जाते हो भाई? जहाँ को पता नहीं है कि नहीं है, कौन जीता कौन हारा कौन सच्चा साबित होगा, उसके ऊपर जाते हो भाग भाग के। कुरान की तरफ आओ ना, मोहम्मद की तरफ आओ, वो जो प्रॉफिट आपने बनाया हुआ है उसके कैरेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं ना। तो उस प्रॉफिट पे तो एक एक बच्चा अपना जान देने के लिए तैयार है, वो आपकी तरह नहीं है। थोड़े अपनी जान तो दे, अपनी जान अपनी जान अपने माल सब उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार है हर एक इंसान, हर एक मोमिन। आपके जरा रुको यार, बात सुने एक मिनट ठहरे। वो जो भेड़े हैं रोज जाने दे रही होती है, उनके पास भी अकल नहीं होता, उनको भी लोग रोज ज़बह कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास अकल नहीं होता। तो आपके पास भी अकल नहीं है जो दो जान। स्ट्रॉन्ग पायलट सुनिए, हमारे जो मोमिनीन किराम हैं, मोमिन भाई हैं, इन लोगों का मसला ये है कि वो अपने मुंह बोले नबी पर जान देने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको सच्चा साबित नहीं कर सकते। ये मसला है देखिए दुनिया में। अच्छा, दुनिया के मुसलमान अपने मुंह बोले नबी पर जान देने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको साबित करो कि वो सच्चा थे, इनके पास कोई सबूत नहीं है। कोई सच्चा क्या, उनको अच्छा इंसान ही साबित कर दें तो बड़ी बात है। उनके वो जो कुरान में आपके लिखा हुआ चीजें खुद लिखी हुई, हदीसों में लिखी हुई, हमने तो नहीं बनाई, हम इल्जाम तो नहीं लगा रहे ना भाई। जो चीजें आपकी लिखी हुई है वो लोग जानते हैं। इन्हीं की किताबों से जो है इनका नबी सच्चा तो साबित नहीं होता। अब मैं जो कहूंगा फिर ये जो है कहेंगे कि ये तौहीन कर दिया इसने। जो लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करूं, मैं अपनी जबान पे लाना नहीं चाहता। जो शख्स सच्चा नहीं होता उसको क्या कहते हैं मिर्जा गालिब? झूठा कहते हैं। मैं अपनी जबान से तो बोलना नहीं चाहता, असल में मसला यही है। जो शख्स आज तक सच्चा साबित नहीं हो सका, जो शख्स आज तक अस्सादिक अल अमीन साबित नहीं हो सका, उसको दुनिया क्या नाम से बुलाएगी? जरा बोले। दावे तो इनके ये हैं कि हमारे नबी को कुफ्फार मक्का नबूवत से पहले अस्सादिक अल अमीन कहकर बुलाया करते थे, लेकिन इस दावे की सबूत के तौर पर जब उनसे पूछा जाता कि भाई कोई एक सबूत दो, तो सबूत इनके पास आज तक जो है मतलब ये नहीं दे सके। अब जिस शख्स को सच्चा साबित करने के लिए जो दावे ये लोग करते रहे हैं, अपने दावों में जब ये लोग झूठे साबित हुए तो ऐसे शख्स को हम क्या नाम देंगे? जरा दुनिया सोच लो। अच्छा, मैं एक लाइन बोलूं। इन्होंने भी कहा कि हमारे हुजूर पे तो एक एक बच्चा और हम सभी जान और माल कुर्बान करने को तैयार हैं। चलो, ये तो वो चीजें हुई जो कुर्बान करने को तैयार हो। मैं एक चीज बताता हूँ जो आप लोग कुर्बान कर चुके हो, और वो है अकल। जो कुर्बान करने को तैयार हो तो ठीक है, लेकिन अकल तो कुर्बान कर चुके हो एकदम से। कर चुके हैं, जी हाँ, बात तो सही है। अच्छा, जब आपने ये बात कही तो मैं एक जुमला और ऐड कर दूंगा मिर्जा गालिब। देखिए, ये बात वाकई गौर करने लायक है। हमारे मोमिन भाई अपने मुंह बोले नबी का जब जब नाम लेते हैं, अगर एक जुमले में, एक सेंटेंस में अगर उनके मुंह बोले नबी का नाम 4 बार आता है तो 4 बार उनके मुंह बोले नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ये रिपीट करते रहते हैं। अच्छा, आपको पता है ये सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है क्या? यानी ये क्या है? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा ये वो ताला है जो अकल पर पड़ जाता है। यानी अकल पर ये दिन में हजारों ताले पड़ते जाते हैं। जब जब कोई शख्स कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, उसकी अकल पर एक ताला पड़ जाता है। तो अब पता नहीं मोमिनीन किराम के जो है अकलों पर यानी अरबों खरबों ताले पड़े हैं। अब उन तक जो है अकल की कोई बात जो है जा ही नहीं सकती, नहीं जा सकती। ये है इनका मसला। सच वाले जी, ये देखें
जब नाम लिया जाता है तो इतना ये भद्दा और भोंडा लगता है जिस तरीके से ये रिपीट कर रहे थे। इनको शर्म भी नहीं आती कुछ कि इनके दिमाग काम नहीं करते। इनके उलेमा अब जो है मतलब बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी देखिए, इनको जो है इतनी भी सूझबूझ नहीं है। अरे भाई, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जहां पर दुनिया भर के अलग अलग तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, भाई अगर कोई शख्स अब्राहम लिंकन का नाम लेता है। जी जनाब बोलिए। सचवाला साहब बात में बोलूं, जब आप इस्लाम को मानते ही नहीं हो, ना किताब को मानते हो, ना पैगंबर को मानते हो, ना अल्लाह को मानते हो, फिर हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हमने आपका पीछे नहीं मेरे भाई, आपके पीछे नहीं पड़े मेरे भाई। सुनिए हमारे ट्रू इस्लाम जी, हमारे मजहब के पीछे इससे पहले भी बहुत बड़े थे। अबू जहल पड़ा था। डर किस बात का है आपको? जाओ मेरे भाई, आप तो हमारे भाई हैं, आप हमारे दिल में रहते हैं, हमको आपसे मोहब्बत है। आपके पीछे नहीं पड़े, बल्कि उस मर्ज के, उस बीमारी के पीछे पड़े हैं जिस बीमारी में वजह से आप लोग बीमार हैं। ये मेरे भाई यही तो मसला है ना। एक बीमार को इस बात का पता नहीं होता कि उसकी बीमारी क्या है। हम आपकी बीमारी की जो है तशखीस करते हैं, हम जो है वो उसकी बीमारी की दवा तजवीज करते हैं कि भाई अकल की रोशनी में आओ, ईमान के अंदर। मेरे भाई पहले सुनो ना, मेरी भी बात भी सुनो ना। 50 बंदे यहाँ बैठे, फिर फायदा इनका क्या बैठना है? चलो अगर चलो आप हमारी बीमारी के बहुत ही बड़े डॉक्टर हो, चलो अगर डॉक्टर बीमार का इलाज करता है तो वो मुफ्त इलाज करता है, आपका भी फिर कोई कुछ ना कुछ मकसद है। मुझे भाई मेरे बताओ क्या मकसद है? हमने 2 रुपए लिए हैं, हमारे खेल का बंद हो, चलो हमें अपने हाथ पे छोड़ो। आपके लिए इलाज करवाए हैं, आप इलाज मरने दो बस। ट्रू इस्लाम भाई एक मिनट ट्रू इस्लाम भाई, ये पूरे पैनल के लोग सब तैयार बैठे हैं, आप दलील दीजिए या हमको कन्विंस कीजिए, हम कबूल कर लेते आपकी बात। आप तो मानते ही नहीं हो। हम आपके पास मौका है ना, इतना कमजोर दे दी ना इन्होंने कुरान की आयत दिखा दी, बस मान लो। खलकल इंसान, बस मान लो। ये कोई कम दलील है? मैंने आपसे यही पूछा, अल्लमा कुरान क्या है? आप बात सुनो भाई, मेरे भाई आपकी बात मैं सुन चुका हूँ। आपको ये भी नहीं पता कि आप जिन अल्फाज की बात कर रहे हैं उसका सीगा क्या है। आप कह रहे हैं कि अल्लाह बोल रहा है। पहली बात तो अल्लाह ने रहमान भी गायब है। आपको ये भी नहीं पता कि अल्लमा और खलका और अल्लमा कौन सा सीगा है। इंसान की कुरान पढ़ेगा मेरे भाई, आपको ये भी तो नहीं पता है ना। म्यूट रख के सुन लो 2 मिनट। भाई मेरा म्यूट बार बार मत आप करो मेरी माइक तो सुन लो ना, बीच में बोलते हो। ज्यादा गुस्से में है इस्लाम भाई। आज वो सवाल पूछने से खफा है सच वाला जी। वो आपने सवाल क्यों पूछा, इस बात पे खफा है वो। नहीं, असल में क्या है, मसला ये था कि दुनिया भर के जितने उलमा हैं और उनके मानने वाले, उनके फॉलो करने वाले, अब तक जो है ये इस तरह की जो है मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे दौड़ रहे थे सदियों से कि अल्लाह का कलाम है कुरान और उनका नबी जो है सादिक़ अल अमीन है, उनका नबी सादिक़ अल अमीन है। ये सारी बातें जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर ये उलमा जरा सुन लो मेरी बात सुन लो जरा। सुन लो आप नीचे बैठ के सुन लो, फिर लेता हूँ आपको। जरा आराम से सुन लें कि देखें कि अब तक सदियों से होता क्या रहा कि इनके इस्लाम के उलमा और उनके उलमा के फॉलोअर जितने भी हैं सदियों से एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए थे। कहा जाता रहा है कि जो है ये कुरान अल्लाह का कलाम है और उनका नबी अस्सादिक़ अल अमीन है। ये कहकर जो है ऐसे ही जो है दिन गुजर रहे थे, सालों बरसों जो है और सदियां गुजरती गई। एक सचवाला आकर जो है इसमें इनकी जो है पूरी जो है जो चली आ रही उस पर जो है भंग डाल दिया। अब जो है अब इनके उलमा को भी नहीं बन पा रहा कि जो है वो ये भी साबित नहीं कर सकते कि इसमें अल्लाह मुतकल्लिम है और ये भी नहीं कह सकते कि हाँ कुरान में अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है ना। इनसे कुछ भी बन नहीं पा रहा है। जी हाँ, इस बात की तकलीफ है कि मैंने जो है उनसे ये सवाल कर दिया, क्या कुरान वाकई अल्लाह का कलाम है? क्या अल्लाह वाकई कुरान में मुतकल्लिम है? अगर है तो कोई एक आयत पेश करें। तो एक भी आयत इनके उलमा से नहीं बन पड़ रही। पूरा कुरान उनके सामने है लेकिन एक भी आयत मेरे सवाल के जवाब में वो नहीं दे सके। तो असल में मसला ये है, इस वजह से वो लोग जो है चराग पा हैं। सचवाला से क्यों नाराज है? इसी वजह से नाराज हैं। जी
सच वाला जी, ये तो जाएंगे, किसी के भी घर जाएंगे, गैर मुस्लिम बस्तियों में जाएंगे, उनको इस्लाम की दावत पेश करेंगे, इस्लाम कैसे अच्छा मजहब है ये बताएंगे। अब यहाँ तो उनको बुला के पूछा जा रहा है कि भाई पेश करो, तो यहाँ नहीं आ रहे कोई भी। जी हाँ, यही तो मसला है ना। ये दुनिया भर में जो है दंदनाते फिरेंगे और कहेंगे कि जो है इस्लाम अल्लाह की तरफ से है, कुरान अल्लाह का कलाम है, हमारा नबी अस्सादिक अल अमीन है, ये किताब अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह जो है इनके पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। ये सारे दावे बगैर किसी सबूत के, अदना सा सबूत भी इनके पास नहीं है, जर्रा बराबर सबूत नहीं है, बगैर किसी सबूत, बगैर किसी दलील के ये सारी बातें दुनिया भर में दंदनाते लेकर फिरते रहे। अब वो बेचारे जो है जो सीधे साधे रहते हैं, पहले ही जो है कुछ मुसीबत के मारे अब ये जो है इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, तो ये समझते हैं कि जो है इन्होंने बड़ा तीर मार लिया। अरे भाई यहाँ आओ, हम करेंगे सवाल इस्लाम पर जो है, अगर दमखम है, इल्मी दमखम है तो यहाँ आइए, हमारे सवालों का जवाब दें। अब बेचारे जो बुद्धू जो कुछ नहीं जानते, उनको जो है इस्लाम पेश करके समझते हैं कि जो है उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। कौन सा तीर मारा तुमने? जी जनाब, ये कह रहे हैं कि आप हमारा इलाज क्यों कर रहे हो? भाई आप ज़हनी मरीज हैं तो हम आपका इलाज कर रहे हैं। जो ज़हनी मरीज होता है उसको नहीं पता चलता कि वो ज़हनी मरीज है, तो आपको हमें क्रेडिट देना चाहिए, हमारा यानी एहसान कबूल करना चाहिए कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। अब ये जैसे दूसरे रिलीजन के बारे में कैसे फैसला ले लेते हैं, आप इनसे पूछोगे तो आपको कहेंगे नहीं नहीं वो जो अहमदी हैं वो तो मुसलमान ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं है, और जो क्रिश्चियन है हम तो मानते ही नहीं है, उनकी तो किताब ही गलत है। तो आपकी किताब गलत क्यों नहीं हो सकती? आके जरा बात कीजिए हमारे साथ, आपकी भी तो किताब गलत हो सकती है ना। नहीं, इनको सुरखाब के पर लगे हैं ना, ये लोग आसमान से सीधे उतरे हैं, हर चीज इनकी निराली है, अनोखी है। जी हाँ, तो इस इल्यूजन से बाहर निकले ना। यही एग्जैक्ट बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये दुनिया के सारे लोग गलत, सब कुछ गलत, सिर्फ ये सही है। सब इनका दीन सही, इनका अल्लाह सही, इनका रसूल सही, इनका नबी सही, इनकी किताब सही, इनकी तारीख सही, इनके सब कुछ सही। दूसरे सारे लोग जो है गलत, सब सारे झूठे। हक सिर्फ इनके पास है, बाकी सारे बातिल हैं। देखिए जरा, ये इस तरह की दंदना के फिर रहे हैं दुनिया में। ये इन्होंने एक बात बोली, हाँ इन्होंने एक बात बोली कि आप हमारी बीमारी का इलाज क्यों कर रहे हैं, रहने देना हमें इसमें, इस हाल में। भाई इतनी भी मोहब्बत नहीं है, बस मसला ये है ना, जो आपकी बीमारी है ना वो आपके साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ठीक है, आप अपनी बीमारी को लेके अपने घर में बैठ जाओ, उस बीमारी को मत फैलाओ, हम आपका इलाज बंद कर देंगे, पड़े रहो पागल बन के घर में, हमें क्या लेना देना। जी हाँ, क्योंकि ये जो है इन्फेक्शियस है, ये मुताद्दी बीमारी है, दूसरों को भी जो है अपना शिकार कर लेती है। जी हाँ, इसका इन्फेक्शन दूसरों तक भी पहुंच जाता है, ये वो बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। जी जनाब, अब और क्या कहना है आपको? जी कुरान किसने लिखा है? फिर कुरान अल्लाह की किताब नहीं है आपके नजर में, फिर किसकी किताब है? भाई लिखने वालों ने लिखा, और किसने लिखा? किसने कातिबुल वही कौन है? जिनके हाथ होते थे, जिनके मुंह हैं, जिनकी नाक है, दो आंखें हैं, उन्होंने लिखा। नहीं मेरे भाई, पता है कुरान में क्या क्या कुफार मक्का जो थे ना, वो कुरान के बारे में पूछते थे कि हजरत यूसुफ कौन था, जुल्करनैन कौन था, हर किसी के बारे में पूछते थे, तभी आसमान से वही आती थी। ये तौरात। अच्छा जरा मुझे ये आसमान से वही कैसे आती थी? वही तो जिब्राइल अमीन लाता था। अच्छा, पोटली में बन के लाते थे, हाथ में ले लेके आते थे। अच्छा जरा रुकिए, अरे मेरे भाई जरा रुकिए। अच्छा, जिब्रील अमीन जो है ये वही जो है पोटली में बन के लाते थे, या हाथ में ऐसा पकड़ के लाते थे? कैसा लाते थे? नहीं मैंने उसको क्या देखा है। तो जाहिर बात है देखा नहीं, तो आपने माना कैसे? नहीं बिन देखो, हमारा मुसलमान का अकीदा यह है कि बिन देखे तुझे खुदा मान लिया। बात नहीं हो रही, आप जिब्रील की बात कर रहे हैं, तो इब्रील जो है दलील तो आपके देखो मेरे भाई, अल बैनातु लिल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। आप तो दलील, आपको दलील देनी है, दावा तो आप कर रहे हो मेरे भाई। नहीं जिब्रील लेके आते हैं, तो जिब्रील कैसे लाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी नहीं, हम तो आपको दलील दे चुके खुदा। हमें कोई दलील देने की जरूरत नहीं है, हमारा भी फिर हमारे मजहब के बारे में फिर क्यों बोलते हो?
हमारा भी अकीदा है कि कुरान अल्लाह की मजहब किताब हमारा नहीं भी है भाई, हमारा भी इतना अकीदा आपका है है। कि अल्लाह कुरान की किताब नहीं है। हमारा भी अकीदा है कि आपका अल्लाह नहीं है, तो आप भी मानो, क्योंकि हमारा अकीदा है। आपने जिब्रील को नहीं देखा ना, जिब्रील कैसे बातें करता था, कौन सी जबान में बात करता था? नहीं, अव्वल से आखिर तक चैलेंज एक सूरत लाओ, एक सूरत, जिब्रील इतना बड़ा आके चुप करता, वो उसको एक सूरत लाओ, जिन्नों को भी इंसानों को भी अव्वल से आखिर तक। उसको प्रॉफिट जिन्नात भी आ गए अभी, जिब्रील को प्रॉफिट जिन्नात भी आ गए। एक छोटा सा चैलेंज मैं भी दे दूं? जी आप भी लगा दीजिए। क्या स्टोरियां उठाई? अरे यार हाँ, क्या क्या जो है, जिब्रील है। मेरे भाई मेरी पूछ माइक रहा हूँ आप कि बार जो बार है- म्यूट कर रहे हो। अच्छा जिब्रील जो मैं है सवाल वही को दे रहा हूँ। पोटली में बांध के देखो लाते सवाल थे, मैंने हाथ करने में दो ना हाथ में भाई, पकड़ मेरे के लाते मोमिनों थे। के लिए है सवाल। सचवाला अरे जी, यार, मैं मेरे अपना सवाल का सवाल जवाब नहीं। जी बोलिए देखो मिर्जा बाद में गालिब बोलिए। एक से करूंगा, सिटोरूम पायलट से करूंगा या भाई सच वाले से करूंगा। अच्छा पायलट से ये करें, हमारे ठीक भाई जो अमित जो तो चुप ही कर रहे हैं बेचारे, बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा तो एक से मैं बात करूंगा, ये मुझसे मोमिनों बात के कर लिए लो। है, हमने रखा है अच्छा खास। ठीक है, किससे बात करना है आपको किससे चलो बात भाई करना आप है? भी से बात करेंगे, किससे? आप मेरी माइक को बार बार म्यूट मत करो। हाँ तो अच्छा, आप किससे बीच बात में करना बोले है? ना, और एक सेकंड, सच वाला जी मिर्जा गालिब कोई सवाल दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, मिर्जा गालिब बोलिए। हाँ, मैं इनके खुदा को असल खुदा मानने को तैयार हूँ, लेकिन हाँ। ये एक काम करें, जैसे मैं जिसे खुदा मानता हूँ वो सूरज को पूरब से निकालता है, ये पश्चिम से निकलवा दे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ इनका अल्लाह ही असल खुदा है। अब ये जवाब देते रहें। चलिए ये छोटा सा काम आपको मिल गया, आपके खुदा आपके अल्लाह को बोलिए कि सूरज को जो है पश्चिम से निकाल दे। जिस दिन वो सूरज पश्चिम से निकल जाएगा तो हम हाँ। उसी वक्त जो है आपके अल्लाह को मान लेंगे, हाँ भाई आपका अल्लाह ये कुछ कर सकता है, वाकई दम खम है उसके अंदर। चले देखो बोल ये देना, तो इतना भाई काम करके दिखाए ना, इतना भी नहीं कर सकते आपके अल्लाह। देखो भाई मेरे, ये तो बचकाना बातें हैं, इन बातों को मैं अच्छा ये नहीं मानता बचकाना हूँ। बात है। अच्छा आपको एक बताना, मिनट, भाई आप बताओ अब क्रिएटिव रुक कौन है? जाओ, अब ये रुक तो जाओ, अब कयामत रुक के जाओ, आखिर में तो हम निकालेंगे इसको जरूर, कोई बात नहीं। रोक दो इन्हें रोक दो। सचवाला जी, जरा उस आयत को याद करिए जो नमरूद के सामने किसके सामने बोली गई थी कि मेरा खुदा तो वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, तो अगर तेरा खुदा सच्चा है तो आपको याद है वो आयत? ये तो नमरूद को पता है, उसने, ये तो नमरूद को पता, मुझे पता है खुद। हाँ, नमरूद ये नहीं अभी है, वहाँ बचकाना पर बात थी नमरूद का ना। नाम नहीं आया। वो आयत क्या है आपको पता है? यानी इब्राहिम ने आयत कहा का क़ाल इब्राहिम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इब्राहिम का जो खुदा है, जो भी खुदा है, उससे कहो कि सूरज को पश्चिम से निकाल कर खा दे। नहीं सचवाला जी, मैं आपको काट रहा हूँ। अभी जब मैंने वही बात बोली तो इन्होंने कहा बचकानी है। अब ये जवाब दें कि इब्राहिम की बात बचकानी थी या नहीं। हाँ जाहिर बात है, इब्राहिम की बात तो बचकानी ही थी ना, इब्राहिम की बात भी बचकानी थी, इब्राहिम का खुदा भी बचकाना था। ऐसा जो भी जिससे बहस हो रही थी वो भी बचकाना था, क्योंकि वो पूरी आयत में सारी बचकाना बातें हो रही। कोई एक हमारा प्राइमरी स्कूल का भी अगर कोई लड़का होता तो वो पलटा के पूछता, अच्छा ठीक है भाई, अगर जो है अगर नमरूद जो है सामने जो बैठा है ये नहीं कर सकता तो ठीक है, आप तुम अपने अल्लाह से कहो कि जो है वो पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। आज हमारा जो है प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी पूछेगा ये सवाल। जी जनाब बोलिए। इनसे कहिए मेरा नाम सीतू राम फलूत नहीं है, इन्होंने गलत नाम दिया है मेरा। क्या नाम लिख दिया आपका? इन्होंने सीतू राम फलूत कहा मुझे। अच्छा नहीं, सीतूराम फलूत मेरी गुस्ताखी हो गई है, मैं हर्ट हुआ, मेरी गुस्ताखी, ये गुस्ताखी है। अच्छा अब सही कहा सॉरी। चलो मेरे भाई, आप बताते हो कि अल्लाह ने कायनात पैदा नहीं किया, कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर नहीं, वो पैगंबर है ही नहीं। आप बता ना कौन है क्रिएटर? फिर किसने कायनात बनाई? आप भी बता ना। भाई क्रिएटर का अगर मैं नाम ले लूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? फिर ले लूं, नाम ले लूं, उसकी दलील देनी पड़ेगी, ऐसे मैं नहीं मानूंगा। मेरे भाई जो दलील घनश्याम नहीं चलेगा, वो घनश्याम आप बोल रहे हो वो नहीं चलेगा, घनश्याम सब्जी वाला वो नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, तो सुनो मेरी बात, फिर कौन सा चलेगा बोलिए? आप बोल रहे हो घनश्याम सब्जी वाला वो नहीं चलेगा मेरे भाई। अरे यार मैं तो अभी बोला ही नहीं यार, जो है ये तो आप ही बोल रहे हैं। इतना हिट गया है घनश्याम, अरे सुनो जरा, ये घनश्याम बाबू इतना हिट जा रहा है
کہ جو ہے میں بولنے سے پہلے ہی جو ہے لوگ جو ہے لوگوں کی زبان پر آ گیا، بہت ہٹ جا رہا ہے. نہیں دکھانا ہے کہ وہ تو ثابت کرنا پڑے گا پھر میرے بھائی. میں بھی اسی طرح سے ثابت کر دوں گا گھنشیام بابو کو جس طرح سے آپ اپنے اللہ کو ثابت کرو گے. ایگزیکٹ سیم دونوں کا معاملہ وہی ہے، کیونکہ گھنشیام بابو اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا چلو ثابت فرق نہیں ہے. میں وہی تو بولنا. چلو بھئی آپ جتنا اپنے اللہ کو ثابت کرتے جاؤ گے میں اتنا گھنشیام بابو کو ثابت کرتا جاؤں گا. جی چلیے شروع کریں. آپ شروع کریں نا. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھنشیام بابو نے جو ہے اس کائنات کو بنایا، آپ اپنے اللہ کے بارے میں بتائیں کہ وہ اس نے بنایا، تو اس کو ثابت کریں آپ. نہیں ہمارے پاس کتاب ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس عقل ہے. ایک آیت آپ پیش کیجئے اور دوسری آیت بعد میں سچوالا جی پیش کریں گے اس کے کاؤنٹر میں. چلو سنیے. گھنشیام بابو کی ایک وحی آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، اے لوگو میں گھنشیام بابو ہوں اور اس کائنات کا خالق ہوں، اس کا مدبر ہوں، اس کا پالنہار ہوں. چلو کتاب کا حوالہ. اے لوگو میرے بھائی یہ وحی مجھے آئی ہے، کیا آپ میری اس وحی کا انکار کرو گے؟ مجھے آئی ہے بھائی، میں اس کا نبی ہوں، میں گھنشیام بابو کا نبی ہوں. کون؟ میں. بالکل انکار کرتے. بالکل. تو کیوں انکار کرتے بھائی؟ آپ کے پاس دلیل پرمان نہیں ہے. کیا ہے؟ سنو میرے بھائی کہ کسی نبی کے نبی ہونے کی سب سے پہلے دیکھو میرے بھائی میں ایک بات بتاؤں. یہ تو اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر. میں میرے بھائی بتاتا ہوں، مسلمان بھی ابھی تک یہی کرتے رہے نا. مسلمان بھی صدیوں سے اندھیرے میں تیر ہی تو چلاتے رہے اب تک، اور کیا کرتے رہے وہ لوگ. دیکھو میرے بھائی یہ جو نبی ہے نا میرے بھائی، دیکھو میرے بھائی یہ جو نبی ہوتا ہے نا، بات سنو نا، پہلے بات سنو. یہ جو نبی ہوتا ہے نا، یہ تو اس کا جو جائیداد، اس کی جو پراپرٹی ہے وہ امت کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے. صدقہ اس کی کوئی لالچ نہیں ہے. اس کا دنیا جس طرح آپ کو پراپرٹی پوری امت کے لیے، میری امت کے لیے صدقہ کر دیا. دیکھو آپ کیوں ہمارا دیکھو جس طرح آپ کو یوٹیوب سے ارننگ ملتی ہے، مال بنتا ہے، ویسے نبی نہیں ہوتے. سچوالا جی میں ایڈوانس، میرے پاس انٹرنیٹ بھی. آپ کے نبی کے پاس کیا ہے؟ سچوالا جی ایک منٹ ٹھہرے. آپ اس کے لیول پہ نہیں جائیں پلیز. اس کو جس طرح کی مثال چھوڑ دیں. اس کو یہ بول رہا کہ نبی صدقہ کر جاتا ہے، سب کچھ چیز چھوڑ جاتا ہے عوام کے لیے، امت کیا مقصد ہے؟ ارے بات سنو تو. صدقہ جو تھا وہ تو مذاق کر رہے ہیں تھوڑی دیر. صدقہ کسی کو دیا نہیں ہے. بیچ میں جو پیچھے اتنی جوان لڑکیاں عورتیں تھیں ان کو بولا ہے تم یہ کسی سے شادی کر ہی نہیں سکتی ہیں. کیا صدقہ کی ہے؟ ان عورتوں بیچاری کو بولتے ہیں نا کہ تم بھی جا کے شادی کر لینا. اتنی جوان لڑکیاں، ان کو ساری زندگی کے لیے بٹھا دیا اپنی ایگو کے لیے. خود باپ بننے نہیں ہے اور سب کو اپنی ماں، آپ کی مائیں بنا دیا. وہ خود بولتے ہیں میں کسی کا باپ ہی نہیں ہوں، جاؤ بھاگ جاؤ ادھر سے. مطلب فاسٹر بھی نہیں ہو کسی کا، میں نے فاسٹر بھی نہیں کیا، جاؤ بھاگ جاؤ. اور ان کو سب کو آپ کی مائیں بنا دیا. کیسا آپ کو الو بنایا ان لوگوں نے؟ کیسا الو بنایا؟ نہیں آپ تو میری مائک بند کر دیتے ہو، سنتے ہی نہیں ہو. بہت اچھا. ایک لائن سن لو. کافی دیر کامیڈی ہو گئی یار. جی چلیں کوئی سیریس بات کرتے ہیں. میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ بھائی لوگ سچوالا جی کو 20% زندگی بھر دیں اور مرنے کے بعد سب صدقے میں لے لیں. کیا صدقے میں لے لیں؟ اور ان کی پراپرٹی وغیرہ سب لے لینا، لیکن ان کو جیتے جی آپ لوگ 20% دیتے رہو. نہیں یہ تو ہمارے باتوں کا صدقہ لیتا ہے. ارے کیوں بھائی، حضور 20% مال غنیمت ہمارے باتوں سے نہیں ملتا ہے صدقہ. نہیں جب اپنے میں آتا ہے تو بہت آپ کیسے چلاتے ہو نا. 5واں حصہ دیتے رہو، مرنے کے بعد صدقے میں. ہاں اصلی مومن تو آپ ہو، جو جس کو مومنوں سے کرایہ ملتا ہے، بڑا مال بنتا ہے. اصلی مومن آپ. ہم کہاں مومن ہے اصلی؟ قرآن سے فائدہ آپ کو ملتا ہے بھائی میرے. بات سنو نا. آپ مرچی کیوں لگ رہی ہے آپ کو؟ سنیے ہمارے قرآن سے فائدہ کس کو ملتا ہے؟ ہم تو زندگی بھر علماء کو نہیں. بات سنو بھائی میرے، بات سنو. بیچ میں کیا بات سننا ہے یار؟ جو ہے جب سے اتنی کامیڈی ہو گئی یار، جو ہے بس کریں. اور زیادہ نہیں ہو سکتا. اب دوسرے بھی لوگ ٹھہرے ہیں